اخلاق کیا چیز ہے؟ اخلاق کی حقیقت کیا ہے؟ آج کل عرف عام میں ہم اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ کسی سے خندہ پیشانی سے مل لیے، ذرا نرمی سے بات کر لیے، ذرا جھک کر اور نرم سے گفتگو کر لیے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اخلاق کا ایک جز ہے، مگر حقیقت اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کی حقیقت کیا ہے؟ ذرا ویڈیو لمبی ہوگی لیکن آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اخلاق کا مطلب آج کل عرف عام میں کچھ اور سمجھا جاتا ہے، اور جس اخلاق کی میں بات کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ عرف عام میں اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ ذرا مسکرا کر کسی آدمی سے مل لیے، اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے نرمی سے بات کر لی، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت خوش اخلاق آدمی ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ لیکن جس اخلاق کی میں بات کر رہا ہوں اور جس اخلاق کا مطالبہ دین نے ہم سے کیا ہے، اس کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ صرف اتنی بات نہیں کہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے مل لیے، یہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اصل اخلاق یہ نہیں ہے، بلکہ اصل اخلاق انسان کے باطن کی، اس کے دل کی، اس کی روح کی ایک صفت ہے۔ انسان کے باطن کے اندر مختلف قسم کے جذبات، خیالات، خواہشات پروان چڑھتے ہیں، ان کو اخلاق کہتے ہیں، اور ان کو درست کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ روح کی اہمیت، اس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کس کو کہتے ہیں۔ انسان نام ہے جسم اور روح کے مجموعے کا۔ صرف جسم کا نام انسان نہیں، بلکہ انسان وہ جسم ہے جس میں روح موجود ہو۔ فرض کرو کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، بتائیے کہ اس کے ظاہری جسم میں کیا فرق واقع ہوا ہے؟ آنکھ اسی طرح موجود ہے، ناک اسی طرح موجود ہے، کان اسی طرح موجود ہیں، زبان اسی طرح موجود ہے، چہرہ ویسا ہی ہے، ہاتھ پاؤں ویسے ہی ہیں، سارا جسم جوں کا توں ہے۔ لیکن کیا فرق پیدا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ پہلے اس جسم کے اندر روح سمائی ہوئی تھی، اب وہ روح نکل گئی، اور روح کے نکل جانے سے انسان انسان نہیں رہتا، لاش بن جاتا ہے، جمادات میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب کسی کا انتقال ہوا، آپ ان کے گھر پہنچ کر کہتے ہیں، ان کا نام لے کر نہیں پکارتے ہیں کہ فلاں کہاں ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں آپ؟ لاش کہاں ہے، مردہ کہاں ہے۔ کیوں ایسا؟ اسی لیے کہ اس کے جسم سے روح نکل چکی ہے، اب جسم ہی ہے۔ وہی انسان جو روح نکلنے سے پہلے دیکھنے والوں کی نگاہ کا پیارا تھا، عزیز تھا، لوگ اس سے محبت کرتے تھے، زمین جائیداد کا مالک تھا، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا تھا، دوست و احباب کا عزیز تھا، سبھی کچھ تھا، لیکن ادھر روح جسم سے نکلی، ادھر نہ تو زمین جائیداد اس کی رہی، نہ وہ بیوی کا شوہر رہا، اور نہ بچوں کا خبرگیری کرنے والا رہا۔ جو لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اب وہ اس فکر میں ہیں کہ جلد از جلد اس کو اٹھا کر قبر میں پہنچا کر ٹھکانے لگائیں۔ کوئی کہے کہ بھائی یہ تمہارا عزیز ہے، اس کو ذرا اپنے گھر میں رکھ لو، تو کوئی اس کو رکھنے کو تیار نہیں، زیادہ سے زیادہ 1-2 دن رکھے گا، بہت کوئی رکھ لے گا تو برف وغیرہ لگا کر ہفتہ بھر رکھ لے گا، لیکن اس سے زیادہ کوئی نہیں رکھے گا۔ اب یہ سب اس فکر میں ہے کہ جلد سے جلد اٹھا کر اس کو قبر میں پھینکو اور دفن کرو۔ وہی محبت کرنے والے جو دن رات اس کی چشم و آبرو کو دیکھتے تھے، اس کے اشاروں پر ناچتے تھے، روح کے نکلنے کے بعد اب یہ حالت ہو گئی کہ بیٹا اپنے ہاتھ سے باپ کو قبر میں رکھنا چاہتا ہے اور مٹی دے کر جلد از جلد اس کو دفن کر دینا چاہتا ہے۔ بلکہ کسی نے قصہ بتایا کہ اخبار میں چھپا تھا کہ ایک آدمی کو جسے شاید شکستہ ہو گیا تھا، لوگوں نے غلطی سے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا۔ جب شکستہ ختم ہوا تو وہ بیچارہ قبر پھاڑ کر کسی طرح گھر پہنچا۔ جب اس نے دستک دی تو باپ نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ جب اس نے اپنا نام بتایا تو باپ گھر سے لاٹھی لے کر نکلا اور لاٹھی سے اس کو مارا کہ یہ اس کا بھوت کہاں سے آ گیا، جو غریب پہلے نہیں مرا تھا اب لاٹھی سے مر گیا۔ آخر یہ کیا انقلاب عظیم واقع ہوا کہ سارا جسم اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا، مگر اب کوئی اس کو گھر میں رکھنے کو تیار نہیں۔ فرق یہ واقع ہوا ہے کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے جسم کے اندر اصل چیز اس کی روح ہے۔ جب تک یہ روح انسان کے اندر موجود ہے اس وقت تک انسان انسان ہے، لیکن جب یہ روح نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں ہے، محض ایک لاش ہے جس سے کسی کو کوئی تعلق نہیں۔ سب اس فکر میں ہیں کہ اس کو جلد سے جلد قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیں۔ روح کی بیماریاں،
जिस तरह इंसान के जिस्म के अंदर बहुत सी सिफात होती हैं कि बाज औकात जिस्म सेहतमंद है, खूबसूरत है, ताकतवर है, तवाना है, और बाज दफा जिस्म नहीफ, कमजोर, दुबला पतला, बीमार, बदसूरत है। इसी तरह इंसान की रूह की भी कुछ सिफात होती हैं। बाज औकात रूह ताकतवर होती है और बाज औकात कमजोर होती है। बाज औकात रूह अच्छी सिफात की मालिक होती है और बाज औकात खराब सिफात की मालिक होती है। जिस तरह इंसान के जिस्म को बीमारियां लगती है कि कभी बुखार हो गया, कभी पेट खराब हो गया, कभी कब्ज हो गया, कभी दस्त आ गए, इसी तरह रूह को भी बीमारियां लगती हैं। रूह को क्या बीमारियां लगती हैं? रूह को ये बीमारियां लगती हैं कि कभी उसमें तकब्बुर पैदा हो गया, कभी उसमें हसद परवरिश पाने लगा, कभी उसमें बुग़्ज़ पैदा हो गया, कभी उसमें नाशुक्री पैदा हो गई। ये सारी की सारी रूह की बीमारियां हैं। रूह का हुस्न जमाल, इसी तरह जैसे इंसान के जिस्म की खूबसूरती है, मसलन कहते हैं कि इसका चेहरा बहुत खूबसूरत है, इसकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, इसका जिस्म बहुत खूबसूरत है। इसी तरह रूह की भी कुछ खूबसूरती है, उसका भी कुछ जमाल है, उसका भी कुछ हुस्न है। रूह का हुस्न क्या है? रूह का हुस्न यह है कि इंसान के अंदर तवाज़ु हो, सब्र शुक्र हो, इखलास हो, खुद पसंदी ना हो, रियाकारी ना हो। ये सब रूह का हुस्न जमाल है। जिस्मानी इबादत, अल्लाह ताला ने हमें और आपको बहुत से अहकाम दिए हैं जिनका ताल्लुक हमारे ज़ाहिरी जिस्म से है। मसलन नमाज है कि नमाज किस तरह पढ़ी जाती है। जिस्म को कभी खड़ा किया जाता है, कभी रुकू में चले जाते हैं, कभी सजदे में चले जाते हैं, कभी सलाम फेरते हैं। ये सारी हरकत जिस्म के ज़रिए अंजाम पाती है, तो ये एक जिस्मानी इबादत है। रोज़ा किस तरह रखते हैं? एक मुकर्ररा वक्त तक भूखे प्यासे रहते हैं, यह भी एक जिस्मानी इबादत है। माल की एक खास मिकदार गरीब को देना फर्ज किया गया है, जिसको ज़कात कहते हैं। ये भी अपने हाथ से दी जाती है। और हज भी एक जिस्मानी और माली इबादत है। हज के अंदर मेहनत करनी पड़ती है, सफ़र करना पड़ता है, खास अरकान अंजाम देने पड़ते हैं। ये सारे काम जिस्म से अदा किए जाते हैं, इसीलिए ये भी एक जिस्मानी इबादत है। तवाज़ु दिल का फ़िअल है। जिस तरह ये सारी इबादतें अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म से मुताल्लिक रखी है, इसी तरह बहुत से फ़राइज़ हमारी रूह और बातिन से मुताल्लिक रखे हैं। मसलन यह हुक्म दिया कि हर इंसान को तवाज़ु इख्तियार करनी चाहिए। अब ये तवाज़ु जिस्म का फ़िअल नहीं है, ये दिल का फ़िअल है, बातिन का फ़िअल है, रूह का फ़िअल है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ये सिफ़त अपने दिल में पैदा की जाए। बहुत से बेपढ़े लिखे लोग तवाज़ु का ये मतलब समझते हैं कि कोई मेहमान आया तो उसकी खातिर वो तवाज़ु कर दो, कुछ खाना वगैरह उसको खिला दो, उसको तवाज़ु कहते हैं। तवाज़ु का मतलब ये नहीं है। जो कुछ पढ़े लिखे हैं वो भी तवाज़ु का मतलब इनकिसारी समझते हैं कि दूसरों से इनकिसारी के साथ पेश आना। बाज लोग ये समझते हैं कि आदमी की जरा गर्दन झुकी हुई हो, कुछ सीना मुड़ा हुआ हो, तो जो आदमी इस तरह लोगों से मिलता है उसको कहते हैं बड़ा मुनकसिरुल मिजाज आदमी है, बहुत मुतवाज़ि है। खूब समझ लीजिए कि तवाज़ु का जिस्म से कोई ताल्लुक नहीं है। तवाज़ु का ताल्लुक क़ल्ब और रूह से है। इंसान अपने दिल में अपने आप को बेहकीकत समझे कि मेरी कोई हकीकत नहीं है, मेरी कोई कुदरत नहीं है, मैं तो एक बेकस बेबस बंदा हूँ। ये ख्याल दिल के अंदर पैदा हो जाए, इसको कहते हैं तवाज़ु, और अल्लाह ने इसी का हुक्म दिया है। इखलास दिल की एक कैफियत है। अल्लाह ताला ने इखलास का हुक्म दिया है कि अपने अंदर इखलास पैदा करो, इबादतों में इखलास पैदा करो। जो काम करो अल्लाह जल्ल जलालुहु की रजामंदी और खुशनुदी के लिए करो, ये है इखलास। इखलास जबान से कहने से नहीं हासिल होता, ये दिल की एक कैफियत है, बातिन की एक सिफत है, जिसको हासिल करने का हमें हुक्म दिया गया है। शुक्र दिल का अमल है। अल्लाह ताला ने शुक्र का हुक्म दिया है। जब कोई नेमत तुम्हें हासिल हो तो अल्लाह जल्ल जलालुहु का शुक्र अदा करो। ये शुक्र भी इंसान के कल्ब का फ़िअल है, इंसान की रूह का फ़िअल है। जितना शुक्र अदा करेगा रूह इतनी ही ज्यादा ताकतवर होगी। सबर की हकीकत, अल्लाह ताला ने सबर का हुक्म दिया है कि अगर कोई नागवार बात पेश आ जाए तो समझो कि अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से है। जो कुछ भी हुआ है अल्लाह ताला की हिकमत से हुआ है, उसकी मशीयत से के मुताबिक है, चाहे ये मुझको कितना ही नागवार हो, लेकिन अल्लाह ताला की मसलिहत इसी में थी। लेकिन हर नागवार वाक़ये के वक्त ये सोचे और इसका एहसास दिल में पैदा करे, इसको सबर कहते हैं। अखलाक बातिन का हुसूल फर्ज है। लिहाजा बहुत से अहकाम ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने हमारी रूह और हमारे बातिन से मुताल्लिक हमको अता फरमाए हैं। याद रखिए कि सबर के मौके पर
सब्र करना ऐसा ही फर्ज है जैसा नमाज पढ़ना फर्ज है, शुक्र के मौके पर शुक्र करना ऐसा ही फर्ज है जैसा कि रोजा रखना फर्ज है, इखलास के मौके पर इखलास करना ऐसा ही फर्ज है जैसा कि ज़कात देना फर्ज है। ये सब भी फराइज हैं जो अल्लाह ताला ने हम पर आयद फरमाए हैं। बातिनी बीमारियां हराम है। बहुत से काम ज़ाहिरी और जिस्मानी एतबार से गुनाह करार दिए गए हैं। मसलन झूठ बोलना, गीबत करना, रिश्वत लेना, सूद खाना, शराब पीना, डाका डालना, ये सारे के सारे काम गुनाह हैं जो हमारे ज़ाहिरी जिस्म से मुताल्लिक हैं, हमारे आज़ा से सरजद होते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने बहुत से बातिनी कामों को भी गुनाह करार दिया। मसलन तकब्बुर एक बातिनी बीमारी है जो हाथ पांव से अंजाम नहीं दी जाती, यह इंसान के बातिन का एक रोग है। अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दिया है और ये इतना ही हराम है जितना शराब पीना हराम है, जितना सूद खाना हराम है, जितना जिना और बदकारी करना हराम है। इसी तरह हसद भी एक बातिनी बीमारी है और इसको भी अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है और ये भी इतना ही हराम है जितना वो गुनाह हराम है जिनका मैंने पहले आपके सामने जिक्र किया है। खुलासा यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान के बातिन और रूह से मुताल्लिक भी कुछ अहकाम रखे हैं, कुछ सिफात को पैदा करने का हुक्म दिया है और कुछ सिफात से बचने का हुक्म दिया है। जिन सिफात को अल्लाह ताला ने पैदा करने का हुक्म दिया है उन सिफात को अपने बातिन में पैदा कर ले, और जिन सिफात से बचने का हुक्म दिया है उन सिफात को अपने बातिन से अलग कर ले, तो कहेंगे इसके अखलाक दुरुस्त हो गए। अखलाक इन्हीं बातिनी कैफियत और रूह की सिफात का नाम है जिनका ऊपर जिक्र किया गया। अच्छे अखलाक जिनको अपने अंदर पैदा करना चाहिए उनको अखलाक फाजिला, और बुरे अखलाक जिनको दूर करना चाहिए उनको अखलाक रजीला कहते हैं। उम्मीद है कि अब ये बात समझ में आ गई होगी कि अखलाक का मतलब एक दूसरे से अच्छी तरह बात कर लेना या अच्छी तरह मुस्कुरा देना नहीं, ये उसका एक नतीजा होता है। क्योंकि जब अखलाक दुरुस्त हो जाते हैं तो इंसान का रवैया हर दूसरे इंसान के साथ बेहतर हो जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पर इसको अखलाक नहीं कहते। अखलाक की हकीकत यह है कि इंसान का बातिन दुरुस्त हो जाए, अखलाक फाजिला पैदा हो जाए, अखलाक रजीला दूर हो जाए और इंसान का बातिन अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक ढल जाए। गुस्सा की हकीकत, अखलाक की इस्लाह कैसे होती है, ये बात एक मिसाल के जरिए आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। मसलन गुस्सा इंसान के बातिन की एक सिफत है। यह गुस्सा इंसान के दिल में पैदा होता है, फिर इसका मुजाहरा बाज औकात हाथ पांव से होता है, बाज औकात जबान से। जब गुस्सा आ गया और गुस्से से मगलूब हो गया तो चेहरा सुर्ख हो गया, रगें तन गई, जबान बेकाबू होकर अव्वल फौल बकने लगी, हाथ पांव चलने लगे। यह गुस्सा का नतीजा है। लेकिन असल गुस्सा इस कैफियत का नाम है जो इंसान के दिल में पैदा होती है। यह गुस्सा ऐसी चीज है कि बेशुमार बातिनी रजाइल की बुनियाद और जड़ है। इसकी वजह से बहुत से गुनाह सरजद होते हैं और बहुत सी बातिनी बीमारियां पैदा होती है। गुस्सा न आना एक बीमारी है। अगर यह गुस्सा इंसान में बिल्कुल भी ना हो, कोई कुछ भी करता रहे लेकिन उसको कभी गुस्सा आता ही नहीं, ये भी बीमारी है। अल्लाह ताला ने इंसान को गुस्सा इस मकसद के लिए दिया है कि इंसान अपनी जान का, अपनी आबरू का, अपने दीन का दिफा कर सके। अब अगर कोई शख्स पिस्तौल ताने खड़ा है और उसकी जान लेना चाहता है और उन साहब को गुस्सा आता ही नहीं, ये बीमारी है। अगर कोई आदमी नौज बिल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो उस वक्त एक आदमी को गुस्सा आता ही नहीं, इसके माना है कि ये बीमार है। ये मौके ऐसे थे कि गुस्सा आना चाहिए था, अगर नहीं आ रहा है तो ये बीमारी है। गुस्सा में भी इत्तिदाल मतलूब है, यानी दरमियानी, ज्यादा खूब गुस्सा ना हो या बिल्कुल ही ठंडा ना पड़ जाए। और अगर गुस्सा हद इत्तिदाल से ज्यादा है तो ये भी बीमारी है। गुस्सा इसलिए आए ताकि दूसरे आदमी के शर से अपनी हिफाजत कर सके, इस हद तक तो गुस्सा सही है। अब अगर गुस्सा करने की जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा कर रहा है, मसलन एक थप्पड़ मार देने से काम चल सकता था लेकिन अब यह गुस्सा में आकर एक थप्पड़ के बजाय मारे चला जा रहा है, यह गुस्सा हद इत्तिदाल से ज्यादा है और गुनाह है। लिहाजा गुस्सा अगर कम हो तो यह भी बातिन की बीमारी और ज्यादा हो तो यह भी बातिन की बीमारी। गुस्सा इत्तिदाल की हद में होना चाहिए कि जरूरत के मौके पर आए और बिला जरूरत ना आए, और अगर बिला जरूरत आए तो आदमी उसको इस्तेमाल ना करे। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु और गुस्सा। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु का वाकया है कि एक यहूदी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखाना कलीमा कह दिया। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु
کہاں سننے والے تھے؟ وہ اس یہودی کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ یہودی نے جب یہ دیکھا کہ اب کچھ اور نہیں کر سکتا تو اس نے وہیں زمین پر لیٹے لیٹے حضرت علی کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً اس کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اب تو اس نے مزید گستاخی کی، اس کو اور مارنا چاہیے تھا۔ فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے میں نے اس کو اس لیے سزا دی تھی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس وقت میرا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے تھا، اس واسطے میں اس پر چڑھ بیٹھا۔ جب اس نے مجھ پر تھوکا تو میرے دل میں اپنی ذات کے لیے غصہ پیدا ہوا کہ اس نے میرے منہ پر کیوں تھوکا۔ اپنی ذات کا انتقام لینے کا جذبہ میرے دل میں پیدا ہوا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اپنی ذات کے لیے انتقام لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اس لیے میں اسے چھوڑ کر الگ کھڑا ہو گیا۔ یہ غصہ میں اعتدال کے پہلے غصہ کا صحیح موقع تھا تو غصہ آیا اور اس پر عمل بھی کیا، اور دوسرے غصے کا صحیح موقع نہیں تھا اس لیے اس پر عمل نہیں کیا اور اس یہودی کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے۔ حد اعتدال کی ضرورت۔ انسان کے باطن کے جتنے بھی اخلاق ہے ان سب کا یہی حال ہے کہ اپنی ذات میں وہ برے نہیں ہوتے، جب تک وہ حد اعتدال میں رہیں اس وقت تک وہ صحیح ہیں، لیکن اگر اعتدال سے کم ہو گئے تو وہ بھی بیماری، اور اعتدال سے زیادہ ہو گئے تو وہ بھی بیماری۔ اصلاح نفس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان اخلاق کو اعتدال پر رکھا جائے، نہ کم ہوں نہ زیادہ ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔